Hello dear students. Now in this video we are again going to derive some expression of velocity and acceleration, but the theme is something different. So before to start that, I would like to discuss two things. One is what is the radial. This is very important concept, radial direction. And one more direction that is called as a transversal direction. This is the transverse or transversal direction. First of all, we will try to understand what is a radial direction, what is transverse direction, and after that, using these two directions, we are going to do something with velocity and acceleration. Okay, fine. So suppose this is a curve. Okay, this is a curve along which the particle is moving. Fine. This is a fixed point. Suppose this is O, and now initially the position of the particle is here denoted by P. Fine. Now if I will join this fixed point O and this point P, then it is called as a position vector of this particle of the point P with respect to O, and usually it is denoted by OP bar and OP bar is denoted by R bar. यहाँ तक आपको सब पता है. Now just I am extending this direction in this way. So this is the direction along OP bar, along R bar, right? And this direction is called as the radial direction. So this direction is called as a radial direction. So what is the understanding of radial direction? You just take one point on the curve, right? That represents the position of the particle, and you join with the fixed point O, you will get the position vector. You just extend that position or that position vector, then that direction is called as a radial direction. Now, once you constructed radial direction, then you draw one more vector that is perpendicular to this radial direction. You can draw the perpendicular here or here, whatever. So just draw the perpendicular to this radial direction. So this perpendicular direction is called as a transverse direction. So transverse direction is always perpendicular to radial direction. So it's so simple. Now what we are doing with velocity, you know that V bar, this is the velocity, and if we want to represent this velocity in xy plane, then we have to write this is a dx by dt I cap or I bar, and dy by dt j cap or j bar. So this is a representation of velocity in xy plane or in Cartesian plane. Now the same velocity, if I want to write in terms of tangent, unit tangent vector and normal vector, unit normal vector, then it is 0. And here you know that ds by dt is the component of velocity along the tangent vector. So keep in mind, this I is along the x-axis, this j is along the y-axis, and x and y both are perpendicular to each other. This is the tangent vector, this is the normal vector, this is the supposed tangent, and this is the normal. So again these are the perpendicular. So the main thing is, सबसे important बात कि ये वेक्टर और ये वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं, ये और ये भी परपेंडिकुलर होते हैं. तो अगर अब यहाँ पर रेडियल डायरेक्शन को परपेंडिकुलर है ट्रांसवर्स डायरेक्शन, तो अगर हमने इस वी बार को कुछ ऐसा लिखा कि यहाँ हमने लिखा रेडियल डायरेक्शन वाला वेक्टर दैट इज डिनोटेड बाय ई आर कैप, ठीक है, और इधर हमने लिखा ट्रांसवर्स के डायरेक्शन वाला यूनिट वेक्टर दैट इज डिनोटेड बाय ई थीटा कैप. अब यहाँ जो भी हमारा एक्सप्रेशन आएगा, इसको हम बोलेंगे कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी along the radial direction. That's why it is called as a radial component of velocity. और ये जो बनेगा वो बनेगा ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी और ट्रांसवर्सल
कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो ये एक तरीका होता है, जैसा वेलोसिटी का किया वैसा एक्सेलरेशन का भी करना होगा। और आपको पता है कि हमने पिछले एक वीडियो में देखा है कि जब भी कोई यूनिट वेक्टर होता है, जैसे कि ई आर कैप, ये यूनिट वेक्टर है अलोंग द रेडियल डायरेक्शन ई आर कैप, और इसका अगर आप डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा लेते हो तो इट इज नथिंग बट अ यूनिट वेक्टर अगेन परपेंडिकुलर टू ई आर कैप, मतलब ई थीटा कैप। और अगर आप डी बाई डी थीटा ऑफ ई थीटा कैप लेना चाहते हो तो वो सर्कल निकाल के हमने डिराइव किया था एक वीडियो में, तो आपको मिलेगा अगेन ई आर कैप बट विथ नेगेटिव साइन। तो ये दो चीजों को आपको बहुत ही ध्यान से रखना है, ठीक है। द फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज ई आर कैप। तो ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है रेडियल डायरेक्शन, और इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है दैट इज रेडियल ई आर कैप, डिनोटेड बाय ई आर कैप। अब ये जो डायरेक्शन है ये परपेंडिकुलर टू द रेडियल डायरेक्शन है, जिसको बोलते हैं ट्रांसवर्स डायरेक्शन, और इस डायरेक्शन के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा दैट इज डिनोटेड बाय ई थीटा कैप। बोथ आर यूनिट वेक्टर्स एंड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और उसके डेरिवेटिव का ये रिलेशन यहां पर मैंने दिया है जो आपको याद रखना है। अब आगे हमें करना क्या है, क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन ये आएगा कि फाइंड अब ये रेडियल का है तो रेडियल का आएगा, फाइंड द रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट, फाइंड रेडियल एंड transverse components of velocity। सेम क्वेश्चन एक्सेलरेशन के लिए भी आएगा, components of velocity। Now how we will get this? The only thing is you have to express the velocity vector in terms of radial direction as well as transverse direction। That means E r cap and E theta cap। मतलब हमारा टारगेट जो रहेगा, दिस इज द टारगेट, कि V बार को हमें लिखना है समथिंग E r cap प्लस समथिंग E theta cap, इस तरीके से हमें लिखना है। यहाँ कुछ तो आएगा, वो हमें ढूंढ के निकालना है कि क्या आएगा, और ये जो होगा वही आपका रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा, और यहाँ जो होगा वो ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसका derivation। So we know that V bar is equal to what is the d by dt of position vector, that is r bar, right? And r bar को जो है हमने किस चीज में लिखा था, एक टेंजेंशियल में कुछ तो लिखा था, राइट? टेंजेंशियल में क्या लिखा था, फाइंड क्या लिखा था, कुछ याद है आपको? ओके, सो आर बार ऐसा लिखते हैं, और फिर इसको वेयर आर बार क्या है बताइए, आर बार इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। और ये आर बार जो होता है उसी के डायरेक्शन में, जैसे मैं डायग्राम निकाल के बताता हूं आपको, ये ओ है और ये आर बार है, मान लीजिए ये पी है, दिस इज आर बार, तो इसी के डायरेक्शन में आपका ई आर कैप होता है, राइट? और ई आर कैप यूनिट वेक्टर है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू ओ, रिस्पेक्ट टू फिक्स पॉइंट ओ। तो क्या हम इस आर बार को, इस वेक्टर को, इसके मैग्नीट्यूड और वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं? देखिए आर बार ये है, इसके अलोंग यूनिट वेक्टर ये है, यूनिट वेक्टर मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 रहेगा, और उस 1 मैग्नीट्यूड को इसी के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जैसे कि आर बार इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आर बार इज आर एंड ई आर कैप, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट? यहाँ जो आर है ये आर, ये मैग्नीट्यूड ऑफ आर बार है, और उसकी डायरेक्शन जो है वो ई आर कैप के अलोंग ही है, इसलिए ई आर कैप यूनिट वेक्टर हमने यहाँ लिखा। तो ये जो आपका वी बार है अब बनेगा डी बाई डी टी ऑफ, इंस्टेड ऑफ आर बार वी आर राइटिंग आर, आर इज a scalar quantity and this is the E r cap, fine। Now using the product rule, पहले हम r का डेरिवेटिव लेते हैं with respect to time, और E r cap as it is रखते हैं, प्लस r as it is लिखते हैं, और d by dt of E r cap, ऐसा आएगा, ठीक है। तो चलिए हमें एक्चुअली ऐसा लाना था हमें, तो पहली टर्म तो आ गई हमारी, ये आपका मिल गया रेडियल कंपोनेंट, लेकिन दूसरी टर्म में हमको ई थीटा कैप चाहिए जो अभी तक यहाँ नहीं आया है,
और आप जानते हो कि ई आर कैप का डेरिवेटिव थीटा से लेंगे तो हमें ई थीटा कैप मिलेगा। तो ये फर्स्ट टर्म जो है वो हम एज इट इज लिखते हैं, ई आर कैप प्लस दिस इज आर, और हमें यहाँ टी नहीं चाहिए, थीटा चाहिए। तो यहाँ हम एडजस्ट करते हैं थीटा ई आर कैप, और ये जो एडजस्ट किया थीटा है इसको हम चेन रूल के इस्तेमाल से इधर लिखते हैं। एक्चुअल वहां डी बाई डी टी था तो हमने डी बाई डी थीटा लिखा, और उस डी बाई डी थीटा को बैलेंस करने के लिए इधर ये लिखा। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा डी आर बाई डी टी ई आर कैप प्लस ये आर, और आपको मैं बता दूं कि ये आर के साथ ये जोड़ देते हैं डी थीटा बाई डी टी, इसको एक ब्रैकेट में डाल देते हैं, और ये जो अब ये बचा ये देखिए ये है ई थीटा कैप। आपको मैंने पहले ही स्लाइड में बता दिया था कि ई आर कैप का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा ई थीटा कैप आता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने सक्सेसफुली वेलोसिटी वेक्टर को ऐसे लिखा डी आर बाई डी टी इंटू ई आर कैप प्लस दूसरा है आर इंटू डी थीटा बाई डी टी और मल्टीप्लाई बाय ई थीटा कैप। हो गया, ये आपका रेडियल कंपोनेंट का डायरेक्शन है, ये ट्रांसवर्स का है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो चीजें है ये है आपका कंपोनेंट, रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, और ये जो है वो है आपका ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो इसलिए आपका फाइनल आंसर कुछ इस तरीके से आएगा। इसका कुछ नोटेशन अलग है ऐसा नहीं है, आपको डायरेक्ट और कंपोनेंट वाइज में लिखना होगा। तो देयरफॉर रेडियल कंपोनेंट ऑफ वी बार इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी। देखिए यहाँ बार नहीं है, यहाँ बार होता तो ये वेलोसिटी हो जाता। तो और ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वी बार इज इक्वल टू आर इंटू डी थीटा बाई डी टी। एक स्टैंडर्ड नोटेशन ये होता है कि जब भी आप किसी का डेरिवेटिव टाइम से लेते हो टी से, तो उसको ऐसा भी लिखा जाता है डॉट, दैट डॉट ओवर द हेड इज रिप्रेजेंटिंग डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो थीटा डॉट। तो ये दोनों है रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। वेरी गुड। अब जैसे वेलोसिटी के आपने निकाले वैसे आपको निकालना है एक्सेलरेशन के। तो क्या रहेगा क्वेश्चन रहेगा फाइंड रेडियल एंड ट्रांसवर्स components of what? Acceleration. फाइन। तो अब इसको कैसे करेंगे? यहां पर ये सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो वी बार था, वी नो दैट वी बार इज इक्वल टू क्या था? वी बार दैट इज यहाँ ई आर कैप। ठीक है, जो पिछले स्लाइड में हमने निकाला वो लिखना है यहां पर, मतलब वी बार इन टर्म्स ऑफ रेडियल कंपोनेंट्स एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट। तो मेरे हिसाब से यहां था डी आर बाई डी टी, ठीक है, या आर डॉट भी लिख सकते हो आप, और यहां था आर डी थीटा बाई डी टी। ये आपको ध्यान में रखना होगा। ये है आपका पिछला एक्सप्रेशन वेलोसिटी का। वी नो दैट acceleration a bar is equal to d by dt of what? Velocity. वेलोसिटी हमारे पास है तो ये हम लिखेंगे d by dt। वेलोसिटी का एक्सप्रेशन ऊपर से लिखेंगे हम, दैट इज dr by dt इंटू ई आर कैप प्लस r d थीटा by dt ई थीटा कैप। ओके, ये हो गया। अब यहां पर ये एक टर्म है, ये सेकंड टर्म है, तो d बाई डी टी दोनों का निकलेगा। मैं यहां से लिखता हूं, तो d बाई डी टी ऑफ फर्स्ट टर्म, आपकी फर्स्ट टर्म है डी आर बाई डी टी, या आर डॉट भी लिख सकते हो कन्वीनियंट के लिए, ये ऐसे, और प्लस ये डेरिवेटिव सेकंड टर्म का भी लिया जाएगा, तो d बाई डी टी ऑफ सेकंड टर्म में है r d थीटा बाई डी टी एंड ई थीटा कैप। ओके फाइन।
अब आराम से हमको डेरिवेटिव लेने हैं। तो चलिए डेरिवेटिव के लिए कुछ अलग कलर इस्तेमाल करते हैं। अब सॉरी, ये कलर ठीक नहीं है, व्हाइट करते हैं। तो ये एक टर्म है, ये दूसरा फैक्टर है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, तो हमें यहाँ प्रोडक्ट रूल यूज करना होगा, है ना। तो प्रोडक्ट रूल में पहले का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो d2r/dt², दूसरा एज इट इज, ओके, प्लस पहला एज इट इज मतलब dr/dt एज इट इज, और दूसरे का डेरिवेटिव दैट इज d/dt ऑफ er कैप, ये यहां हो गया, प्लस अब यहां पर ये आपका फर्स्ट फैक्टर है, ये सेकंड है, तो यहां पर लिखा जाएगा d/dt ऑफ फर्स्ट फैक्टर दैट इज r d θ/dt, दूसरा फैक्टर एज इट इज, प्लस पहला फैक्टर r d θ/dt एज इट इज, और डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t, दूसरे फैक्टर का मतलब e θ कैप का। तो ये इस तरीके से बनेगा। अब देखिए यहां पर है यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर का डेरिवेटिव जब थीटा से होगा तभी हम इसका दूसरा परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं। तो हमें यहाँ चाहिए थीटा, डी थीटा, जो कि वहां नहीं है। तो चेन रूल का इस्तेमाल करके हम उसको लिखने की कोशिश करेंगे। तो ये एज इट इज लिखते हैं, d2r/dt² ई आर कैप एज इट इज, फिर ये dr/dt एज इट इज, ठीक है। अब यहां थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, यहां लिखना पड़ेगा d/d θ ई आर कैप, और यहां का जो d थीटा लिखा है उसको इधर मैनेज करेंगे चेन रूल के हिसाब से। तो ये हो गया इसका, प्लस अब यहां अगेन प्रोडक्ट आ गया, तो यहां हम लिखेंगे dr/dt, पहले का डेरिवेटिव, दूसरा एज इट इज, है ना, इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं, प्लस पहला एज इट इज और दूसरे का डेरिवेटिव मतलब d θ/dt का डेरिवेटिव ये, और ये e θ कैप एज इट इज, और यहां पर ये r d θ/dt एज इट इज लिखा जाएगा, और यहां पर भी दिक्कत थीटा की है, तो इसको हम मैनिपुलेट करेंगे d/dθ e θ कैप, और यहाँ d θ/dt। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, जो कि एडजस्टमेंट है। तो अब देखिए ये जो यहाँ पर मैंने लिखा है, कहाँ पर, ये जो है ना, ये बनेगा ई थीटा कैप, ओके। यहाँ पर एक चीज है, ये जो है ना, ये बनेगा माइनस ई आर कैप। आप थोड़ा सा ये पीछे जाके देख लीजिए, मैंने ये दोनों चीजें बताई है, और बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा। तो मैं एज इट इज ही लिख देता हूं। तो ये फर्स्ट टर्म को मैं डॉट में जानबूझकर लिखता हूं, देखिए आर डबल डॉट, क्योंकि टी का डेरिवेटिव 2 बार है, ई आर कैप, तो थोड़ा सा जगह बच जाएगी हमारी, प्लस ये हो जाएगा आर डॉट, है ना, फिर उसके बाद ये लिखते हैं, वो हो जाएगा थीटा डॉट, और फिर ये बीच वाला जो है वो आ जाएगा ई थीटा कैप, फाइन, प्लस यहां क्या होगा, ये आर डॉट, ये अब मैं ये सॉल्व कर रहा हूं, आर डॉट, फिर थीटा डॉट, और उसको मल्टीप्लाई होगा ये ई थीटा कैप, ई थीटा कैप, ठीक है। फिर ये हो जाएगा प्लस आर थीटा डबल डॉट, क्योंकि 2 बार टी का डेरिवेटिव है, और ये हो जाएगा लाइक दिस। फिर आखिरी टर्म में क्या होगा, तो ये हो जाएगा आर, फिर थीटा डॉट, ये थीटा डॉट, फिर ये भी थीटा डॉट, तो थीटा डॉट का स्क्वायर हो गया, और ये जो है वो हो जाएगा माइनस ई आर कैप, लाइक दिस, फैंटास्टिक। तो अब हमारे पास टोटल 5 टर्म आ गए, आई थिंक। ई आर कैप वाले 2 टर्म है, उसको मैं अंडरलाइन कर लेता हूं, इसमें है ई आर कैप, और यहाँ एक है ई आर कैप, तो इन दोनों को एक साथ डाल के ई आर कैप कॉमन लेते हैं, तो आर डबल डॉट, ये माइनस साइन की वजह से माइनस हो जाएगा, माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर ई आर कैप कॉमन, प्लस अब बचे हुए 3 टर्म को, ये जो 3 टर्म बचे हैं जिसमें ई थीटा कैप दिख रहा है, उनको एक साथ लेते हैं, तो ये टर्म और ये टर्म का एडिशन हो जाएगा 2r डॉट थीटा डॉट, और ये हो जाएगा r थीटा डबल डॉट, और इसमें से कॉमन निकलेगा ई थीटा कैप।
मुझे लगता है कि हम सक्सेसफुली एक्सेलरेशन को लिखने में कामयाब हो चुके हैं। पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है मैंने सही किया है। आई होप कुछ गलत तो नहीं हुआ, देख लो एक बार। ये आखिर में जो लिखा था उसमें आर डॉट रह गया शायद, है ना। ये देखिए आर, आर का ठीक है, थीटा डॉट का स्क्वायर भी ठीक है। ओके फाइन, एकदम बिल्कुल सही है, सब कुछ सही है। तो अब देखिए इस ए बार को आपने इस वेक्टर के फॉर्म में लिखा। ये है आपका रेडियल डायरेक्शन वाला वेक्टर, यूनिट वेक्टर, और ये है आपका ट्रांसफर। तो बच्चों बताइए आप मुझे कि इसको आप क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे। इसको बोलेंगे आप कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग द रेडियल डायरेक्शन, और इसको बोलेंगे कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग द ट्रांसवर्स डायरेक्शन, है ना। तो देयरफॉर रेडियल कंपोनेंट of acceleration is equal to r डबल डॉट या d2r by dt स्क्वायर भी बोल सकते हो आप, इंटू r थीटा डॉट का स्क्वायर, एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू r थीटा डबल डॉट और d2 थीटा बाय dt स्क्वायर भी लिख सकते हो आप, 2 r डॉट थीटा डॉट। So these are the results actually। ये एक रिजल्ट है एक्सेलरेशन का रेडियल कंपोनेंट, ये दूसरा रिजल्ट है एक्सेलरेशन का ट्रांसवर्स का। तो बस हमें इतना ही इस वीडियो में पढ़ना था। अब बाकी की जो चीजें हैं, देखिए वेलोसिटी को हमने 3 फॉर्म में लिखा है, याद रखिए आप, 3 फॉर्म में लिखा है। एक कार्टेशियन के फॉर्म में लिखा है, फिर टेंजेंट एंड नॉर्मल के फॉर्म में लिखा है, और अभी हमने रेडियल एंड ट्रांसवर्स के फॉर्म में लिखा है। तो दैट इज द थिंग। अब अगले लेक्चर में हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो इससे रिलेटेड है। तब तक के लिए गुड बाय।